with us. So, hello everyone. Here I am, Dr. Reena Thakur. Welcome you all to the platform of Fly with Homeo Wings for one day webinar. Turning new things certainly excited and scary at the same time, but should always be encouraged because whether it was a good or bad experience, a life lesson lasts forever. Therefore, we are here today to discuss a very essential topic in this scenario, that COVID-19 care with homeopathy, art of gentle healing. And this is the true way to serve the suffering humanity as well as to excel yourself. So friends, a very warm evening to each one of you who have joined us today. I feel privileged enough to welcome you all to this session, and I'm blessed enough to be a moderator of today's session because we have two great speakers from heart of the country, that is Gopal MD. So let's take the name of our master, Dr. Samuel Hahnemann, and with his blessings, let's start this webinar. So without wasting any more time, I just want to introduce to you the dignified speakers of today. We have a respected speaker with us, Dr. Ashok Jain sir from Bhopal. He is the founder man of Fly with Homeo Wings Academy, Research Center and Social Services, who is holding a huge experience of 27 years of homeopathic clinical practice. And you must know about him that how he stepped into the homeopathy world. Actually, sir was सर पहले SBI में थे. तब उनके फादर ग्रेजुअली बीमार पड़ने लगे और फाइनली कुछ ग्रेवियस डिजीज उन्हें हो गई. देन सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स उन सभी ने गिव अप कर दिया था उनके केस में. That time, Bhopal city के renowned homeopathic physician Dr. Gopal Bhatnagar sir, उन्होंने Dr. Ashok Jain sir के father को ठीक किया. During that time period, Dr. Ashok Jain sir witnessed the miracle of homeopathy and decided to become a homeopath who can serve like this. तो इस तरह से सर ने होम्योपैथिक वर्ल्ड की जर्नी स्टार्ट की. LBS से DHMS किया and since 1994 started practicing homeopathy and continuously producing wonderful results. He is the best clinician having a wide range of patients from state, national as well as worldwide. He has excellent command on critical cases. When people loses their hope, he will become an angel for them and bless them with miracle of homeopathy. Instead of this, सर सिर्फ ह्यूमंस की सफरिंग्स के लिए नहीं, वाइल्ड लाइफ के लिए भी काम करते रहे. वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में उन्होंने सर्विसेज दी हैं और बहुत सारे एनिमल्स को भी उन्होंने ठीक किया है. He is also an authorized physician in Lions Club, Arushi, and different state or central organizations. He is also organizes a free health camp for special children such as mental retardation, cerebral palsy, autism, ADHD, Down syndrome, and other genetic disorders. Recently, in 2019 and 20, he was awarded by Dainik Bhaskar Group for his excellency in homeopathy. So this is a brief formal introduction about our honorable speaker, Dr. Ashok Jain sir. Welcome sir for this session. And I also would like to welcome our second speaker, Dr. Romil Jain sir, who is a perfect example of dedication which lasts life forever. He will be with us in second session, that is investigation in COVID care. During these all sessions, if you have any queries, you can put your queries into chat section
and every session has separate question answer session, and your query will be addressed in question answer session at the end of each sessions. So I just want to hand over the session to Dr. Ashok Jain sir. Welcome, sir. Please begin the session. Over to you, sir. Thank you, Dr. Reena. Thank you very much. Good evening, friends. How are you? Everybody is fine? दोस्तों, पैंडेमिक का समय है। कोविड-19 कोरोना महामारी के रूप में हमारे साथ सामने फैला हुआ है। पूरे देश में और संसार में बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं और जनहानि भी हो रही है। ऐसे में हम होम्योपैथ की जिम्मेदारी होती है कि हम आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद करें और पीड़ित जनमानस की सेवा कर सकें। दोस्तों, इस समय होम्योपैथी का योगदान कोरोना के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है, और हम चाहते हैं कि हम लोग सब आगे बढ़कर मिलकर इसको करें और लोगों को लाभ पहुंचाएं। विगत समय में मैंने जितने समय से होम्योपैथी की और एक साल में जो मैंने कोरोना के ऊपर वर्क किया, आज मैं उसके अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं, इसलिए जिससे कि आप भी उसका फायदा उठा सकें और लोगों की सेवा कर सकें। आशा है कि मैं जो आपको समझाऊंगा वो आज आपको पसंद आएगा या उसमें समझ आएगा। जहां तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको संतुष्ट कर सकूं। आज का सेशन शुरू होने से पहले हम अपने गुरु ग्रेट मास्टर डॉक्टर हेनीमैन को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, ऐसी प्रार्थना है। दोस्तों, आज से 200 वर्ष पूर्व डॉक्टर हेनीमैन जी ने जो साइंस का डिस्कवरी करी, वो एक हमारे लिए वरदान के रूप में सौंप के गए। इस साइंस के द्वारा, इस होम्योपैथी के द्वारा आज हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांत 200 वर्ष पूर्व जितने उपयोगी थे, आज भी उतने ही उपयोगी हैं। उसको आज तक कोई हिला नहीं सका। नॉर्मल प्रैक्टिस हो, एपिडेमिक हो, पैंडेमिक हो, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट हो, उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांत उस पर लागू होते हैं और उसी के द्वारा ही व्यक्ति को पूरा लाभ होता है, समाज को लाभ होता है। ऐसे समय में जब पैंडेमिक है तो उनके द्वारा उसके लिए भी रूल्स बनाए गए हैं और वो हम फॉलो करते हुए उसको अपन इलाज कर रहे हैं। इस पैंडेमिक में जब कोरोना इस तरीके से फैल रहा है, तो पिछले साल जब ये शुरुआत हुई थी, तभी इस प्रकार की हमारी पैथी के द्वारा रास्ता दिया गया कि आप एक प्रिवेंशन के रूप में एक मेडिसिन निकालिए जो प्रचलित सिम्टम है, उस बेसिस पर एक दवाई निकालें जो प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम करे। जैसे कि हम जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमने उस समय जितनी भी जो मेंटल सिम्टम्स आ रहे थे लोगों के, यानी बीमारी आने की वजह से
कहीं एक जगह फैल गई, दूसरी जगह भय का वातावरण है, कैसा वातावरण बना हुआ था, भय का वातावरण, चिंता का वातावरण, पैनिक हो रहे थे लोग, एंशियस थे, फियरफुल थे। तो उनकी मेंटल कंडीशन, उनके मेंटल सिम्टम्स लिए हमने प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए। और जो पूरे कोरोना के सिम्टम पूरे हर जगह के, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो या प्रदेश में, सभी प्रकार के मेंटल और फिजिकल सिम्टम लेकर के, पैथोलॉजिकल सिम्टम लेकर के उसको हमने जॉट डाउन किया और उसको रिकॉर्ड करके एक प्रिवेंटिव मेडिसिन की। जैसे कि हम जानते हैं कोरोना एक बहुत फास्ट प्रोग्रेसिव डिसीज है, तो हमको एक ऐसी दवा की जरूरत थी जो फास्ट प्रोग्रेसिंग हो और रिक्वेस्ट हो, वो जो इस प्रकार की बीमारी के सारे सिम्टम्स को कवर कर सके। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना में जो सिस्टम्स हो रहे हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, हेमरेज होता है, लंग्स के अंदर हेमरेज होता है, क्लॉटिंग्स होती है, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है, सेप्टिसीमिया होती है। इस सब के जो पैथोलॉजिकल सिम्टम थे, जो मेंटल सिम्टम पेशेंट के थे, उन सब सिम्टम्स को लेकर के हमने एक रिपर्टाइज चार्ट को रिपर्टाइज किया और एक दवा प्रिवेंशन के रूप में निकाली। उस दवा का नाम आपने देखना है आर्सेनिक एल्बम। ये दवा निकली जिसको हमने देखा कि ये सारे सिम्टम्स को कवर करती है। सबसे खास बात ये कि ये मेंटल सिम्टम कवर करती है और पैथोलॉजिकल सिम्टम भी कवर करती है। मेंटल सिम्टम क्योंकि हम जानते हैं कि आवर बॉडी इज गवर्न बाय माइंड। यदि हमारा माइंड बैलेंस्ड है तो हमको कोई बीमारी अटैक ही नहीं कर सकती, क्योंकि हम समाज में लोग लोग सभी प्रकार के लोग जो है भय के वातावरण से गुजर रहे थे, लोगों की जान जा रही थी। तो उस समय उनका मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा था, शेक हो रहा था। उसको रोकने के लिए हमने जो सिम्टम्स लिए, आर्सेनिक वो कवर कर रही थी, उनको एक डोज आर्सेनिक की दे देते हैं तो उससे उनका डायनिक लेवल पे जाकर के उनको माइंड को बैलेंस करती, ताकत दी। जब आर्सेनिक एल्बम तो मेडिसिन आ गई निकल करके, तो वो माइंड पे वर्क करे, इसलिए हमने उसकी हाई पोटेंसी 200 सेलेक्ट की, जिससे कि लोगों की रक्षा हुई। और एक साल से जब हमने देखा कि लोग लगातार तो दवाई खा रहे हैं, और उसमें हमको जो फीडबैक मिला साल भर बाद, हमको अधिकतर पेशेंट से जानकारी मिली कि उनको कोई बीमारी नहीं हुई, और जिन लोगों को हुई भी तो उनकी कोई जन हानि नहीं हुई, उनको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और आप लोगों ने भी शायद ये दवाई पेशेंट्स को दी होगी। मैंने ये इस प्रकार का मैसेज सभी को भेजा था, अपने सब दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को ये दवाई के लिए एक संदेश भी भेजा था और वीडियो भी अपलोड किया था। आप लोगों ने शायद उसका, दोस्तों आपने शायद उसका उपयोग किया भी होगा और कर रहे होंगे अपनी। तो आपको जो फीडबैक मिले हो, यदि आपने किसी ने यूज किया हो, आपको फीडबैक मिले हो तो मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके बाद, साल भर के बाद में, आज एक कोरोना एक नए रूप से आगे बढ़ रहा है। पेशेंट बीमार पड़ ही रहे थे तो हमारे पास कोरोना के पेशेंट बराबर आते रहे। जनरली पहले दिन जो पेशेंट आए तो हमने देखा कि उनको हल्का बुखार सा है, शरीर में दर्द है, गले में खराश है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात थी कि वो घबराए हुए से, डरे हुए से, चिंतित थे, मेरा क्या होगा, मेरी तबीयत ठीक होगी कि नहीं होगी, डाउटफुल थे। तो हमने पूछा भाई तुमने आर्सेनिक एल्बम ली? तो कुछ लोगों ने आर्सेनिक एल्बम ली हुई थी कुछ दिन पहले, परंतु उनको ये बीमारी हुई क्योंकि उनको एक्सपोजर हो गया था, किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में क्लोजली आ गए थे।
तो ऐसे लोगों को जो डर फिर भी डर था वो कम था, तो हमने उनको एक डोज आर्सेनिक एल्बम की और दी, जिससे कि उनका मेंटल बूस्ट हो सके, माइंड उनका बूस्ट हो सके और वो इस डर से बाहर निकले, जिससे बीमारी से लड़ सके। साथ ही वो ये बीमारी भी कवर करती है कि गले में खराश भी कवर करती है, बॉडी एक भी कवर करती है। इसके अतिरिक्त क्योंकि हमने कोरोना के सारे सिम्टम्स देखे हुए थे, जैसे कि लंग्स में निमोनिया होना, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होना, तो हमने ऐसी कोई एक दवा जो कि इस काम को पूरा कर सके, आर्सेनिक के काम को पूरा सके, क्योंकि इस समय वायरस का लोड उनके ऊपर बढ़ चुका है। तो उसको आर्सेनिक में पूरा काम करे, इसके लिए हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन फास्फोरस निकाली, जो कि पूरा काम करती है, आर्सेनिक के काम को पूरा करवाती है। उसको एक इंटरवल में हमने उसको फास्फोरस दिया, 200 पोटेंसी में दिया, जिसे आर्सेनिक 200 सुबह दे दिया, तो फास्फोरस 200 शाम को दिया। ऐसे उन पेशेंट्स को हमने 1 या 2 दिन की दवा दे करके भेजा कि यदि तुमको इसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमको आके वापस। तो दोस्तों, हमने पाया कि 2 या 3 दिन में उन लोगों की तबीयत पूर्णतः ठीक हो गई। यानी बहुत सारे पेशेंट उतनी ही दवाई से 2 या 3 दिन में पूर्णतः ठीक हो गए। परंतु कुछ पेशेंट ऐसे भी थे जो ऐसी सिम्टम्स लेकर के आए जिनको कि अचानक ठंड लग रही थी, अचानक बुखार आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया, यानी उन्होंने आके बताया कि सर अभी हम सुबह तक ठीक थे, दोपहर में अचानक बुखार आ गया है और बहुत तेज बुखार लग रहा है, ठंड लग रही है, पानी की प्यास बहुत ज्यादा है, बेचैनी बहुत अधिक हो रही है। फिर हम कुछ और कोई तकलीफ इसके अलावा कोई परेशानी तो नहीं है सर, बहुत डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना जाए। भाई तो क्या हो जाएगा, हमने पूछा भाई तुमको क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे कल्चर में आदमी मृत्यु के नाम से नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए वो बोलना भी नहीं चाहता कि मेरे को कोई मृत्यु हो जाएगी। तो हमने पूछा तुमको किस बात का डर है सर, अब क्या बताएं, आप समझते तो हो, आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, अब मेरे को डर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। तो हमने फियर ऑफ डेथ देखा, पानी की प्यास पूछी भाई हमने, तो उन्होंने बताया कि प्यास, पानी की प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही है, बेचैनी बहुत अधिक है। तो हमने ऐसे पेशेंट को एकोनाइट एकोनाइट 200 की 1-2 डोज दे करके उनको बोला कि 1 डोज अभी लीजिए, 1 डोज सुबह लीजिए और हमको 2 दिन बाद बताइए। इसके बाद इसके अतिरिक्त भी हमारे पास कुछ और पेशेंट आए जो अपने अलग अलग सिम्टम्स लेके आए। तो मैं आपको ऐसा करके बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार के पेशेंट आए और हमने किस प्रकार से उनको बुखार में या सिम्टम्स के बेसिस पे दवाइयाँ दी, जिससे कि आपको ये आइडिया लगेगा। तो ऐसे जिस पेशेंट को, अभी मैं पहले बुखार के बारे में आपको पूरा बताता हूँ। कुछ पेशेंट ऐसे आए जैसे उन्होंने बताया कि उनको पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, शरीर की सारी हड्डियां ऐसा लग रहा है कि दुख रही हैं, बहुत बेचैनी हो रही है और लेटने पर मन बेचैन है, शरीर बेचैन है, में से लेटा नहीं जा रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। हमने पूछा और इसके अलावा क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि खांसी चल रही है। तो खांसी भी चल रही, तो कैसी खांसी चल रही है। तो उन्होंने जो बताया खांसी का, कि खांसते समय पे चेस्ट में बहुत अधिक पेन होता है और मेरे को दोनों हाथों से अपने चेस्ट को होल्ड करना पड़ता है। इस प्रकार से वो अपने हाथों से उन्होंने होल्ड किया हुआ रहा। और फिर उसके अलावा और खांसी में क्या होता है, तो उन्होंने कहा था कभी कभी तो मेरे को उठ के बैठना पड़ता है और घुटनों पे दोनों हाथ टिका करके खांसना पड़ता है। ये एक बड़ा अच्छा सिम्टम है। इसके लिए आपको दवा बताता हूँ कि यूपेटोरियम परफोलिटम, समझ गए होंगे ये दवा, यूपेटोरियम परफोलिटम, जिसमें पेशेंट को आगे झुकना पड़ता है, घुटनों पे हाथ टिका करके आगे झुक करके खांसना पड़ता है। इसके अलावा और भी सिम्टम, नाशिया, वॉमिटिंग,
परंतु उसको लेटे रहने में दर्द होना, पूरा शरीर दुखना, ये सब हो रहा था उसके बेसिस पर, क्योंकि यूपेटोरियम परफोलिटम एंटीवायरल मेडिसिन है और वायरस के अगेंस्ट बहुत अच्छा वर्क करती है। आप सब जानते ही हैं कि यूपेटोरियम परफोलिटम ने उस समय हमने उनको दवा दी और उनका बहुत अच्छा बीमारी आगे बढ़ना रुकी। इसके अतिरिक्त बुखार में हमारे द्वारा इस प्रकार के पेशेंट के बुखार में पेशेंट आए, सर हमको भी बुखार आ रहा है। क्यों, कब से आ रहा है भाई? 2 दिन हो गए सर। 2 दिन हो गए तो क्या तकलीफ है? खांसी चल रही है, खांसने में बहुत दर्द हो रहा है, सीना ऐसा लगता है फट जाएगा। इसके अतिरिक्त खांसने में सिर में बहुत दर्द हो रहा है और सिर को होल्ड करके बैठना पड़ता है, खांसते समय पकड़ना पड़ता है, सिर हिलता है तो बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है मैं आंखें बंद करके पढ़ा रहा हूँ, हिलो भी नहीं, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही। पानी की प्यास पूछा, पानी की प्यास बहुत अधिक लग रही है, थोड़ी थोड़ी देर में मुंह सूख रहा है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि पेशेंट ब्रायनिया ब्रायनिया मांग रहा है, ब्रायनिया का पेशेंट है। स्कोर कंफर्म करने के लिए हमने पूछा भाई तुम्हारा टेस्ट कैसा है? उन्होंने कहा सब कुछ कड़वा लग रहा है। कोई बात ना करे, आंखें बंद करके पड़े हों, तो इन सब सिम्टम्स के बेसिस पर उनको ब्रायनिया। मैं आपको ब्रायनिया समझने के छोटा सा सूत्र बताता हूँ कि ब्रायनिया 3 शब्दों की दवाई है। ब्राई, ड्राई, फ्राई। आप कैसे? ड्राई मीन ब्रायनिया, ब्रायनिया में ड्राई यानी उस पेशेंट का नेचर भी ड्राई होता है, बहुत रूखे स्वभाव का पेशेंट होता है और उसकी ये ड्राइनेस पूरी बॉडी में रन करती है। उसका मुंह सूखता है, उसका स्टमक सूखता है, पानी पिया पीते जाता है, उसको प्यास खत्म नहीं होती, हर थोड़ी देर बाद 1 गिलास पानी पी लेता है। उसका स्टूल ड्राई होता है और बुखार में उसकी पूरी बॉडी तपती रहती है, यानी फ्राई होती है इतनी। वो कहता है कि मेरा शरीर जल रहा है, अपन हाथ लगाए तो पूरी बॉडी बाहर से ऐसी तपती हुई जलती हुई महसूस होती है। तो यानी फ्राइनेस, यानी उसकी बॉडी को फ्राई कर दिया किसी ने। तो ड्राई डाई फ्राई में पूरी मेडिसिन समझ में आ जाती है। ऐसे पेशेंट को हमने ब्रायनिया ब्रायनिया न्यूमोनिया को भी कवर करती है, आपको मैं आगे बताऊंगा। तो इस प्रकार से उसको हमने ये दवा दी और उसको, कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आए दोस्तों जिनको पहले दिन दूसरे दिन जैसे हमारे पास आए तो उनको कोई इच्छा नहीं किसी काम की। उनके परिवार वालों ने बताया कि चुपचाप पड़े हुए हैं, किसी चीज को इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बात करो तो बात नहीं करते। हमने पूछा उनसे कि भाई आप आपको क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस मेरे को आप बात नहीं करिए, या मेरे को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ना काम की इच्छा हो रही। हमने उनके पेशेंट के अटेंडेंट से पूछा उनके हाथ पे ठंडे गर्म किस प्रकार से हैं, तो पाया कि उनके ठंडे हो रहे हैं, गीले से हो रहे हैं, ठंड लग कर बुखार आ रहा है और बुखार के समय पे प्यास पड़ रही है। सबसे बड़ी बात, इंडिफरेंस टू एवरीथिंग, ऐसा आपको महसूस हो गया होगा। पेशेंट को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। यहाँ से हमको ये समझ में आ गया, उसको अपने घर वालों से भी बात करने की इच्छा नहीं, काम की इच्छा नहीं, इंडिफरेंस टू एवरीथिंग में हमने उनको सीपिया, एक बहुत अच्छी दवाई है सीपिया, जिसमें कि पेशेंट को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं। सबसे अधिक बात ये होती है उसको अपने घर वालों से भी उसको चिढ़ जाता है और आंखें बंद करके पड़ा रहता है। ऐसे पेशेंट को सीपिया की हाई पोटेंसी देने पर 1 या 2 दिन के अंदर ही उनकी बीमारी पूर्णतः समाप्त हो, यह हमारे को फीडबैक है। कुछ पेशेंट ऐसे आए और भी आए, उनको कंटिन्यू फीवर बना हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोरोना चल रहा है दोस्तों। तो ऐसा है कि कोरोना का ही पेशेंट आपके पास आएगा, हो सकता है कि कोई दूसरा पेशेंट भी आए। हमको परंतु ये मान के चलना है पेंडेमिक में कोरोना हो सकता है, तो हमको दवाइयां बहुत सोच समझ के देना है।
हमको ऐसी दवाइयां देना है जो कोरोना में होने वाली बीमारी को भी कवर करे और अभी के प्रेजेंट सिम्टम को भी कवर। ऐसे पेशेंट आया जिसको कि कंटिन्यूस फीवर था, हमने जानकारी ली तो मालूम पड़ा कि उसकी सिर गर्म, पूरी बॉडी कोल्ड, रेस्ट ऑफ द बॉडी कोल्ड। उससे पूछा भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, उसने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बस थर्मामीटर से टेम्परेचर देखता हूँ तो बहुत गर्म महसूस होता है। यानी पेशेंट कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अपने रूब्रिक होता है सेज वेल मैन वेरी सिक। तो इसके बेसिस पे जो दवाई बनती है दैट इज आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना में भी पेशेंट की जो खांसी होती है उसको खांसते समय उसके चेस्ट में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, पूरी बॉडी दर्द करती है। कुछ पेशेंट, उस पेशेंट को नहीं, कभी किसी पेशेंट को दर्द करती, किसी को नहीं करती, और उसको डर लगता है, बॉडी दर्द करती है तो उसका एक अजीब सा सिम्टम होता है कि कोई भी जब उसके नजदीक आ रहा हो तो उसको लगता है कि ऐसा नहीं है मुझसे टकरा जाए तो मुझको कोई चोट लगे और मेरे को दर्द के मारे वैसे में फिर ऐसे पेशेंट को हमने आर्निका दिया। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया हो कि आर्निका, यूपेटोरियम, ब्रायनिया, एकोनाइट। क्योंकि एकोनाइट का पेशेंट रेस्टलेस होता है, ब्रायनिया का पेशेंट चुपचाप लेटा रहना चाहता है, और एकोनाइट में रेस्टलेसनेस के साथ में उसको फियर ऑफ डेथ रहता है, यूपेटोरियम में रेस्टलेसनेस रहती है। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे सिम्टम्स के बेसिस पर दवाइयों को डिफरेंशिएट करके उनको दे सकते हैं। यूपेटोरियम के पेशेंट की पूरी बॉडी में बोन्स में पेन होता है, दोस्तों। इसके बाद इसके अतिरिक्त भी जो पेशेंट आए बुखार के लिए, उनको हमने कंटिन्यूस फीवर आया रहा, जैसे किसी पेशेंट को कंटिन्यूस फीवर है, हमने पूछा कब से बुखार है भाई, सर जब से बुखार आया है 2 दिन होने को हो रहा है, उतरा ही नहीं है, कांस्टेंट बना हुआ है। कोई भी दवा लेते हैं तो हमने भाई दवा कौन सी लेते हैं, कभी किसी ने कोई एंटीपायरेटिक ले ली, उसने सोचा कि शायद 1 आध दिन में ठीक हो जाएगा, तो उससे कहा कि उसको पूरा बुखार नहीं उतरा और 1 या 2 दिन में ही इतनी कमजोरी आ गई है कि मैं हिल भी नहीं सकता। इतनी कमजोरी आने के कारण हमने उनको चिनिमा मार्च की लोअर पोटेंशियल में कुछ डोजेज दी, क्योंकि चिनिमा मार्च लोअर पोटेंशियल में बहुत अच्छा वर्क करती है। 2 या 3 डोज देने पर ही कंटिन्यू फीवर, यदि वायरल फीवर है, ठंड लग करके आया है, तो चिनिमा मार्च की 2 या 3 डोज से उतर जाता है। तो यही फीवर कंटिन्यूड हो और उसके डिस्चार्जेस में बदबू आ रही हो, उसको ड्राउजीनेस हो, बुखार के दौरान मटिंग हो रही हो, पेट प्रिक कर रहा हो, टाइफाइड टाइप का बुखार लग रहा हो, तो ऐसे पेशेंट को ऑफेंसिव डिस्चार्ज के बेसिस पर उसका स्टूल, यूरिन, माउथ सभी जगह से उसके डिस्चार्जेस में बदबू आती है। तो ऐसे पेशेंट को हमने बैक्टीरिया की कोई दोस्तों इसके अतिरिक्त जो भी पेशेंट आए, जिससे और भी बुखार के पेशेंट आए जिसमें इंटरमिटेंट बुखार था, ठंडा के बुखार आया, 2-2 3-3 चादर ओढ़ रहे हैं, कंबल ओढ़ रहे हैं, रजाई ओढ़ रहे हैं, शिवरिंग हो रही है, बुखार उतर नहीं रहा, और उतरता है तो पसीना आके उतरता है, तो ऐसा महसूस हुआ कि ये मलेरियल फीवर हो सकता है। परंतु चूंकि तो हमने ऐसे पेशेंट को चिनिमम सर की कुछ डोजेस दी 30 पोटेंसी में, इनमें 2 या 3 बार दीजिए, 2 या 3 दिन में तो बुखार उतर जाता है। दोस्तों ये तो आपको बुखार का समझ में आ गया। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि ये कोरोना के बुखार में हमने जो खास बात नोट करी पूरे सेशन में, हमने सैकड़ों पेशेंट के ऊपर हमने ये जानकारी ली। जैसे कि आप जानते ही हैं कि स्वस्थ व्यक्ति का टेम्परेचर कितना होता है, डेफिनेटली यू नो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। परंतु आप यदि आज आकर के अपना टेम्परेचर देखिएगा
तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 98 के नीचे है। अधिकतर लोगों का टेम्परेचर 98 के नीचे है। तो आप देख रहे होंगे कोरोना में आपको जितने भी पेशेंट मिलते हैं कोविड-19, उनके लंग्स में इन्फेक्शन तीसरे चौथे दिन तक आ जाता है, निमोनिया का। तो वो क्यों आ जाता है? वो क्यों तीसरे चौथे दिन तक उनके लंग्स काफी हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि उनको वो कहते हैं कि मेरे को बुखार ही नहीं है? क्योंकि इसलिए कि वो 98.6 के ऊपर, 99 के ऊपर अपने बुखार को देख रहे हैं, जबकि बुखार की शुरुआत ही 98 के ऊपर हो गई। यानी 98 के नीचे आप स्वयं महसूस करेंगे कि 98 के नीचे तो आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, और 98 के ऊपर आप को हरारत महसूस होने लगती है, परंतु आप चूंकि एक्सेप्ट नहीं कर पाते नॉर्म्स के हिसाब से। पर यही चीज ऐसी है कि कोरोना में इन जनरल जो व्यक्ति होता है, ये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको कि 98.6 नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा। बस यहीं पर ये गलती हुई लोगों से, और उसको उन्होंने 97 से 98 के बीच में, तो नॉर्मल हुआ 98 से 99 के बीच में, उन्होंने कोई इलाज नहीं लिया, तो उनकी बीमारी बढ़ती गई और तीसरे चौथे दिन उन्होंने काफी वायलेंट रूप ले लिया। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। आगे जो पेशेंट आ रहे हैं, आप उनका टेम्परेचर चेक कराइए, और दिन 98 के ऊपर आता है तो उनको बुखार मान करके ठीक है। अब इस प्रकार के पेशेंट में जिनका कि बुखार इस प्रकार से चल रहा है, हमने बुखार की दवाई भी दी। ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि इसमें अपनी ब्रायनिया है, हम पहले ही फास्फोरस दे चुके हैं कि फास्फोरस निमोनिया को कवर करती है। ब्रायनिया भी निमोनिया की दवाई है, एकोनाइट भी निमोनिया की दवाई है। इस प्रकार की दवाइयां हमारी जो पेशेंट को गई, तो कई पेशेंट तो शुरू में ही ठीक हो गए, पर बहुत सारे पेशेंट जो कि बाद में आए, चौथे दिन आ रहे हैं, पांचवें दिन आ रहे हैं, उन्होंने ये दवा नहीं ली हुई है, उनको निमोनिया हो गया है। तो ऐसे पेशेंट को भी हमने चौथे 5 दिन से 5वें दिन या अलग अलग फेजेस में जब आए, तो अलग अलग फेजेस में उसके हिसाब से उनको ट्रीट किया। तो हमने निमोनिया के लिए भी उसका ये समझने की कोशिश करी कि किस प्रकार से वो पेशेंट के सिम्टम्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझे कि उनका ऑक्सीजन लेवल कितना चल रहा है। तो हमने उनसे कहा कि भाई तुम अपने ऑक्सीजन को चेक करते रहो। बुखार वाले पेशेंट को पहले ही बता दिया था कि आप अपना ऑक्सीजन चेक करना है, अपना टेम्परेचर दिन में 3 बार रिकॉर्ड करना है। दिन में 3 बार अपना ऑक्सीजन चेक करिए, आपका ऑक्सीजन 95 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 95, 96 से लेकर 99 तक है, तो आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर पर करके दवाई खाइएगा, और यदि 95 से नीचे जा रहा है तो पूरा सिस्टमेटिक इलाज लीजिएगा होम्योपैथिक। 90 से 95 तक भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, परंतु उसका अर्थ ये होता है कि उसको लंग्स में इन्फेक्शन आना शुरू हो गया है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति को निमोनिया की दवाई उसके इंडिकेटेड सिम्टम्स के हिसाब से, क्योंकि पेंडेमिक का समय है, तो हमको जो दवाई सिलेक्ट करनी है वो पैथोलॉजी सिम्टम के बेसिस पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। पैथोलॉजी उसकी पूरी कवर हो तो तभी जाकर के पेशेंट, क्योंकि हमको उसकी जान बचाना है। मेंटल सिम्टम इस समय इसके पेशेंट के सारे सिम्टम्स इंटरमिंगल्ड हो गए हैं। एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाकर के हमको उनके सिम्टम्स लेकर के दवाई सिलेक्ट करना पड़ती है, चाहे बुखार के लिए दे रहे हो, चाहे निमोनिया के लिए देना। ऑक्सीजन लेवल की जांच के लिए हमने उनसे कहा कि आप ऑक्सीजन चेक 2 तरीके से कीजिए। एक नॉर्मल कंडीशन में चेक कीजिए, दूसरा उसको 6 मिनट चलिए। 6 मिनट चलना है, एक जगह से बिल्कुल निश्चित दूरी तक जाइए। मान लीजिए कि आप 10 मीटर की दूरी तक जा रहे हैं और 10 मीटर तक वापस जाइए, तो 200 मीटर के बाद यदि आपकी सांस फूलने लगे तो मान के चलिए कि आपको लंग्स का इन्फेक्शन शुरू हो गया, चाहे आपका ऑक्सीजन परसेंटेज कुछ भी रह रहा हो। और यदि 6 मिनट पूरे चलने के बाद भी उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है, तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसका ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर जाना चाहिए। यदि 95 के नीचे जा रहा है तो इसका मतलब उसका लंग्स इन्फेक्टेड है, निमोनिया की शुरुआत हो गई है। तो
और इस प्रकार का पेशेंट यदि 90 तक है तो घर में रह सकता है। उसको दिन में एक बहुत अच्छे योग कि उसको प्रोन पोजीशन में दिन में यदि 90, 91, 92 चल रही है तो दिन में 2 या 3 बार उसको प्रोन पोजीशन में लेटने का बोलिए कि दिन में 2 या 3 बार प्रोन पोजीशन में लेटा रहे। यदि वो 2 या 3 बार प्रोन पोजीशन में दिन में 30-40 मिनट लेटता है तो उसकी ऑक्सीजन बढ़ जाती है। इसको आप किसी यूट्यूब पर प्रोन पोजीशन के बारे में यूट्यूब पर आप देख सकते हैं और आपकी जानकारी में होगा भी। यदि परंतु ऐसे पेशेंट की जिसकी ऑक्सीजन 90 से नीचे जा रही है तो उसको घर पे 85 तक जा रही है तो घर पे ऑक्सीजन सपोर्ट दे करके होम्योपैथिक दवा दी। परंतु 85 से नीचे ऑक्सीजन वाले को हमने कहा कि आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है, क्योंकि आपको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आपके दूसरे ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट होगा, पैथोलॉजिकल टेस्ट होंगे। हमारे जो इस प्रकार के बुखार के पेशेंट भी आए थे तो हमने उनको पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए बोला था कि उसमें CBC, CRP, डी-डाइमर ऐसे टेस्ट पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन अलग अलग समय पर कराना है। टेस्ट के बारे में जानकारी इस सेशन के आखिर में डॉक्टर रोमिल आपको देंगे कि कब किस टेस्ट की आवश्यकता और उस बेसिस पे कौन सी दवा। तो मैं आपको बीच में छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा सा बताते जाऊंगा। इस प्रकार की निमोनिया में जो हम देखते हैं, तो हमने जब एक पेशेंट को कहा कि भाई आप CRP CT चेस्ट करा के आइए, HRCT करा के आइए, एक्सरे करा कर आइए, तो हमने देखा कि उसका निमोनिया किस प्रकार से बॉडी में आ रहा है। तो हमको अधिकतर केस में जानकारी मिली कि इसमें कोरोना में जो COVID-19 में जो पेशेंट को निमोनिया आ रहा है वो पेरिफेरी से सेंटर की ओर तरफ जा रहा है, लोअर लोब से अपर लोब की तरफ जा रहा है, पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट को कि उसकी निमोनिया की स्थिति भी समझता कि क्योंकि निमोनिया लेफ्ट लंग से शुरुआत हुई है या राइट लंग से शुरुआत हुई है, लोअर लॉब से शुरुआत हुई है, कहाँ से हुई है, उस बेसिस पे दवाई को डिसाइड करना है। उसकी जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। पेशेंट की खांसी किस प्रकार की चल रही है उसकी जानकारी चलना बहुत जरूरी है। उसको फ्लम किस प्रकार का आ रहा है ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इस बेसिस पर ही हमने उसकी निमोनिया की दवाइयां, क्योंकि इसमें निमोनिया में यदि निमोनिया कंट्रोल नहीं होता है तो इसमें कंसोलिडेशन होकर के इसकी कैपिलरीज में क्लॉटिंग होकर के बाद में हेमरेज होने के चांसेस लंग्स में बढ़ जाते हैं, तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। और बहुत से लोग इसी वजह से अपने जान से हाथ धो रहे हैं। होम्योपैथी में सबसे अच्छी बात होम्योपैथी की ये होती है कि जब हमने होम्योपैथी मान लीजिए उसको ब्रायनिया दी बुखार के लिए, तो उसकी बीमारी वहीं रुक जाती है, क्योंकि वो निमोनिया भी कवर करती है और उसको अगले स्टेज में नहीं जाने दी। एकोनाइट भी यही काम करती है, इसी प्रकार से आर्सेनिक और फास्फोरस भी यही काम करती है। परंतु बहुत से पेशेंट जो हमारे उस दिन नहीं आए, पहले हमारी ये दवाइयां बुखार की नहीं ली, उन्होंने पूरी प्रॉपरली नहीं ली, तो ऐसे पेशेंट को बाद में निमोनिया हुआ, निमोनिया के पेशेंट आए, तो हमने ऐसे पेशेंट को, क्योंकि जैसे फास्फोरस का पेशेंट था तो फास्फोरस पहले दे चुके। अब उसके कुछ सिम्टम मैं बताता हूँ निमोनिया के फास्फोरस के क्या रहते हैं। जैसे फास्फोरस का पेशेंट चाहता है उसको ठंडा पानी मिले, कोल्ड ड्रिंक मिले, तो दिन भर तो सोता रहता है, सोने की कोशिश करता रहता है और रात भर बेचैन रहता है। उसकी खांसी भी इस प्रकार से चलती है कि आप देखेंगे ठसके के रूप में खांसी चलती है। कुछ पेशेंट में 3 से 4 कप्स एट ए टाइम मिलते हैं, यानी ये 3 कप्स हो गए, 4 कप्स हो गए, 3-4 कप्स, या फिर लंबी खांसी मिलेगी, स्पाज्मोडिक कफिंग होगी, गले में होर्सनेस रहेगी, वॉइस उसकी होर्स हो जाएगी। तो उसको फास्फोरस दे दी, वहीं उसकी निमोनिया रुक गया। इसके अतिरिक्त निमोनिया की हमारी खेती में बहुत अच्छी दवाइयां हैं। इसमें से एक दवा एंटी टार्ट, एक दवा एंटी मार्च। मैं आपको पहले एंटी मार्च के बारे में बताता हूँ। एंटी मार्च
निमोनिया की बहुत अच्छी दवा है। तो फर्स्ट स्टेज की निमोनिया से लेकर के अधिक पूरे निमोनिया रिजॉल्व होने तक सभी जगह काम आती है। इसका निमोनिया बायलेटरल लंग में होता है। जनरली ये लेफ्ट साइड के लंग से शुरुआत होती है, तो लेफ्ट साइड के लंग से शुरू होते हैं, राइट साइड जाती है। उसको सांस की तकलीफ बहुत अधिक होती है। खाना खाने के बाद उसकी खांसी बहुत बढ़ जाती है, लेटने से खांसी बहुत बढ़ जाती है, थोड़ा सा चलने से भी सांस फूलती है। तो एंटीबायोटिक ऐसे पेशेंट को, क्योंकि यदि पहले पेशेंट को क्या दवाई गई है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ही देनी चाहिए, और यदि डायरेक्ट आया है तो एंटीमार्ट देंगे। तो ये एंटीमार्ट के गुण है। यदि डायरेक्ट पेशेंट आया है, निमोनिया का फर्स्ट स्टेज का आया है, तो एंटीमार्ट उसको हमने देंगे फ्रिक्वेंट डोजेस के रूप में, क्योंकि ये फास्ट प्रोग्रेसिंग डिसीज है, दिन और रात बहुत तेजी से बढ़ती है। तो हमने कई पेशेंट को दिन में तो दी ही, रात में यदि वो सो नहीं रहा है तो भी रात में दवाई दिलवाई, 2-3 आवर्ली उसको रात में भी दवा दी। इसके अतिरिक्त एंटीटार्ट एक मेडिसिन होती है, इसके बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं। एंटीटार्ट के पेशेंट में फ्लम जो होता है, म्यूकस जो होता है, ओवरलोड होता है पूरे ब्रोंक के ट्यूब में, उसके लंग्स में बलगम भरा रहता है। परंतु चूंकि जब तक ये इस प्रकार की स्थिति आती है तब तक पेशेंट बहुत कमजोर साइनोज हो जाता है। उसकी कमजोरी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो खांस भी नहीं पाता है। सबसे खास बात ये होती है एंटीटार्ट के पेशेंट की, तो वो खांस भी नहीं पाता है, उसकी दबी हुई खांसी चलती है। शुरू में खांसी चल रही थी, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई वैसे वैसे खांसी कम होना शुरू होती गई। तो बहुत सारे लोग घर में, माएँ घर में, जनरली बच्चे को यदि निमोनिया हो गया है तो वो ये सोचती हैं कि खांसी कम हो रही है, बच्चा ठीक हो रहा है, परंतु ये उल्टा सिम्टम है। यहाँ खांसी कम होना यानी बीमारी बढ़ना और प्राण घातक होते जाना। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसको एंटीटार्ट के पेशेंट की इतनी कमजोरी होती है कि वो अपना खांस करके बलगम भी नहीं निकाल पाता, और यदि उस एंटीटार्ट देने के बाद धीरे धीरे उसकी खांसी बढ़ती चली जाएगी, उसमें सूख वेट कफ की वजह से के बाद उसकी खांसी धीरे धीरे ड्राई खांसी जाएगी। तो वो इसका मतलब उसका निमोनिया ठीक होते जा रहा है, वो स्वयं भी ठीक होते जा रहा है। एंटीटार्ट के पेशेंट पहचान, दूसरी पहचान ये भी है कि उसको ड्राउजीनेस बहुत होती है, वो बेहोशी भी के रूप में भी हो सकता है। खांसते खांसते उल्टी हो सकती है, उसको उबके आ सकते हैं। इस प्रकार के पेशेंट को उबके आ रहे हैं, खांसी उल्टी हो रही है, तो एंटीटार्ट की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होती है इपिकॉक। तो एंटीटार्ट के साथ इपिकॉक को भी दिया जा सकता है, और हमने दिया, पेशेंट ठीक हुआ। दोस्तों, आपको एक बीच में एक बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ, जो हम शुरू से सारे पेशेंट को दे रहे हैं। यानी वेरी फर्स्ट डे से हम उसको स्टार्ट कर देते हैं, फेरमफॉस 6X। ये बड़ी अच्छी दवा है बायोकेमिक, जो दिन में 3 बार 4 बार यदि गर्म पानी में घोल कर दी जाए तो ये बॉडी बुखार तो रोकने का काम करती ही है, परंतु ये निमोनिया की सारी स्टेजेस में, कमजोरी में, एनीमिया में, सभी जगह काम करती है। इसको आप किसी भी दवा के साथ साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। ये दवा आपको मालूम है एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, एंटी हेमरेजिक भी है, ब्लीडिंग रोकने का काम करती है, ब्लड बनाने का काम करती है।
तो इसका हमने भरपूर भरपूर उपयोग किया। इसके अतिरिक्त एंटीमटाड जैसी ही एक दवा और है निमोनिया में, अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब के पेशेंट को भी कमजोरी बहुत अधिक होती है, ड्राउजीनेस बहुत होती है, परंतु उसके लंग्स में जो बलगम होता है, कफ जो होता है, वो उसमें स्टेथो लगा के सुनने पर बबल्स की आवाज आती है। कोरोना में इवन आज पेशेंट को चेक भी नहीं कर पा रहे हैं, पर हमको दूसरे सिम्टम के बेसिस पर ये निकालना पड़ता है कि उसकी दवाई अमोनियम कार्ब है या नहीं। तो उसके और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कमजोरी है, ड्राउजीनेस है, उसके लिप्स पर्पलिश ह्यू लिप्स हो जाते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के कारण इस प्रकार की स्थिति बनती है। और यदि ये निमोनिया में ये पैरालिसिस ऑफ लंग्स को भी कवर करती है। इस दवाई की एक सबसे खास इंपॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि उसका रात में 3 बजे एग्रावेशन हो सकता है। अमोनियम कार्ब के पेशेंट जनरली हम बोलते हैं कि पेट के बल सोना चाहता है पेशेंट, उसको अमोनियम कार्ब का पेशेंट को पेट के बल लेटने से आराम मिलता है, परंतु यहाँ पर बताया गया है कि ही वांट टू लाई ऑन ए स्टमक नॉट ऑन द एब्डोमेन। आप सभी जगह पढ़ेंगे तो ये मालूम पड़ेगा कि पेशेंट वांट टू स्लीप ऑन स्टमक। ऐसा स्टमक पे क्यों लेटना चाहता है, स्टमक वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि यदि स्टमक की तरफ से दबेगा, पेट केवल लेटने से उसको आराम मिलता है, तो स्टमक को उस पर दबना चाहिए। स्टमक दबता है जब उसका, तब उसको आराम मिलता है। एब्डोमेन दब रहा है नहीं, स्टमक दब रहा है तो स्टमक के नीचे उसको हो सकता है कि तकिए की आवश्यकता पड़े, तो क्या इस प्रकार के पेशेंट को इस प्रकार से लेटने पर आराम मिलता है, तो ये समझ में आ जाता है कि ये अमोनियम कार्ब का पेशेंट हो सकता है। और इसके अलावा एक खास बात, हम जब भी कोई दवाई डिसाइड करते हैं, अब हमको तो अभी हमारे पास सिम्टम तो यही है, अब हम अमोनियम कार्ब है कि एंटीमटाड है, इसमें कैसे पता लगाएं? तो हमको हर पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री भी जरूर लेनी चाहिए। यदि उस पेशेंट के पास हिस्ट्री मिल रही है, इसके अलावा और प्रेजेंट सिम्टम मिल रहे हैं, तो वो और भी सिम्टम देखना चाहिए। जैसे उसको अमोनियम कार्ब के पेशेंट को अल्सरेशन माउथ होता है, गम्स होता है, स्कॉर्ब्यूटिक गम्स हो जाते हैं, गम्स ब्लीड करते हैं, हेमरेजिक टेंडेंसी होती है पहले से उसके पाइल्स की ब्लीड करते हैं, नाक से खून आता है उसके मुंह धोने में। इस प्रकार यदि हमको पास्ट हिस्ट्री मिलेगी तो जरूर यह अमोनियम कार्ब के पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स मिलेंगे, ये बीमारियों के रूप में ये सिम्टम मिलेंगे, तो हमको ये पक्का हो जाएगा कि ये अमोनियम कार्ब का पेशेंट है, तब तक हम उसको अमोनियम कार्ब आसानी से। तो किसी भी केस में पास्ट हिस्ट्री की भी इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त एक दवा और भी है काली कार्ब, काफी तेज दवाई मानी जाती है निमोनिया में भी। जब शुरुआत की स्टेज में इस दवा कोई काम नहीं रहता, बाद की स्टेज में जब एक्सुडेशन इसके लंग्स में कंसोलिडेशन होने लगता है, एक्सुडेशन होकर के कंसोलिडेशन की तरफ जाती है, सपोरेटिव स्टेज आती है, उसको हरा पीला बलगम आने लगता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लगे, तब ऐसे पेशेंट को काली कार्ब दी जा सकती है। परंतु कोई उसका और भी सिम्टम मिलना चाहिए, तो ऐसे पेशेंट में सिम्टम मिलता है उसकी आंखों के अपर आईलिड के इधर स्वेलिंग मिलना, एक बेगी स्वेलिंग मिलती है। इसको भी रात में एग्रावेशन मिलता है 2 से 3 बजे तक या सुबह 5 बजे तक, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्रावेशन मिलता है काली कार्ब में। तो इसमें जो भी सिम्टम यदि मैच हो जाते हैं, की नोट सिम्टम जब मिल जाते हैं, तो हमको वो दवा उस पेशेंट को देनी चाहिए, तो निमोनिया में वो वर्क करती है। इस दवा की 2-4 खुराक ही उस बीमारी को ठीक करने के लिए काफी हद तक सफिशिएंट रहती है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट में जैसे फास्फोरस किसी पेशेंट को दी हुई और वो काम पूरा नहीं कर रही, तो फास्फोरस की फॉलोज बेल मेडिसिन काली कार्ब, तो काली कार्ब की 2 डोज देकर के उसमें एक इंटरवल के एट ए टाइम हम एक ही दवाई देंगे, पर कुछ घंटे बाद हम एक दूसरी दवा काली कार्ब देकर के फिर
2-3 डोज दे करके इसके बाद वापस फास्फोरस को जाते हैं। फास्फोरस को भी ज्यादा डोजेस नहीं देना पड़ती है, कम डोजेस दीजिए तो फास्फोरस भी काफी। कभी कभी हमने ये देखा पेशेंट में कि जैसे शुरू में हमने एंटीमार्ट दिया पेशेंट को, शुरुआत से आया निमोनिया है, तीसरे चौथे दिन से निमोनिया है तो उसको एंटीमार्ट दी, परंतु एक जगह जाकर का उसका काम रुक गया। उसके जो निमोनिक स्टेज में उसका रिजोल्यूशन होना है, रिजॉल्व होना है निमोनिया, उसके कंसोलिडेशन खत्म होना है, वो नहीं हो रहा, रुक गया, दवाई ने काम करना रुक गया। उसको रोकने का, उसको समझने का तरीका भी है कि ऑक्सीजन लेवल भी कहीं जाकर के रुक गया। जैसे जैसे एंटीमार्ट काम कर रही है, सारी निमोनिया की दवाइयां काम कर रही हैं, उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, तो कहीं जाकर के हार्ड कर दिया। तो ऐसे पेशेंट को सपोरेटिव स्टेज आने के पहले, उसको हरा पीला बलगम आने के पहले सल्फर 30 की 1 या 2 डोज, और बहुत आवश्यक हो तो सल्फर 200 की जा सकती है, और ये देने के बाद कुछ घंटे बाद हम वापिस अपने पुराने कोर्स को रिज्यूम कर लेते, तो उसका निमोनिया रिजॉल्व होने लगता और फायदा वापिस पड़ जाता है। तो उसको हम वापिस पुराने इलाज पे चले जाते हैं। दोस्तों ऐसे भी पेशेंट आए जिनके कोई 8वें 9वें 10वें दिन आ रहे हैं, जहां पर कि हेमरेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिम्टम्स के प्रॉपर मिल नहीं रहे हैं उनसे, उनका डी डायमर बढ़ा हुआ है। डी डायमर पैथोलॉजी टेस्ट में ये बताता है कि यदि वो बढ़ा हुआ हो तो क्लॉटिंग और हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट जब सेटिंग में हो तो उनको हमारी होम्योपैथी की जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन है, जो एंटी हेमरेजिक, एंटी कोगुलेटिव, एंटी इंफ्लेमेटरी जो मेडिसिन है, उसमें ओफिडिया ग्रुप की लेकेसिस मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमोनिया में बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें लंग्स में हेपेटाइजेशन हो जाता है, लंग्स के अंदर गैंग्रीन बनने के चांसेस होते हैं, उसके खांसने में ब्लैक ब्लड आता है, इसमें ब्लैक ब्लड आता है। आपको मैंने फास्फोरस में ब्राइट रेड ब्लड आ सकता है, रस्टी स्पुटम आ सकता है, अमोनियम कार्ब में फ्रेश ब्लड आता है। ये चीज भी आप नोट करके रखिए। तो ब्लीडिंग यदि देखते हैं हम तो अमोनियम कार्ब की फ्रेश ब्लड खांसने में, एलेकेसिस का ब्लैक ब्लड, एक एक सिम्टम जो है हमें इंडिकेट करता है कि हमें कौन सी दवा देना है। लेकेसिस लेफ्ट साइड से शुरू होती है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं लेकेसिस लेफ्ट साइड मेडिसिन है, और इसमें एक खास सिम्टम होते हैं लेकेसिस के कि पेशेंट को गर्मी बहुत लगती है, उसको हवा की बहुत आवश्यकता होती है, उसको कपड़े टाइट लगते हैं। इस प्रकार के पेशेंट को हम लेकेसिस की एक डोज दे करके उसकी ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब उसने हेमरेजिक कंडीशन पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, तो एंटी कोगुलेटिव का वर्क, एंटी हेमरेजिक का वर्क दबा शुरू हो गया है, ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे पेशेंट पे वापस इंडिकेटेड जो रेमेडी होती है उस पर स्विच ओवर कर सकते हैं लेकेसिस के बाद। इसी प्रकार की लेकेसिस लेफ्ट साइडेड होती है, लेफ्ट से राइट साइड जाती है उसको लंग्स में। इसी प्रकार की दवाई राइट साइडेड में प्रोटेलस हॉरिडस होती है। प्रोटेलस हॉरिडस भी हॉट रेमेडी है, परंतु राइट साइडेड। इसका भी निमोनिया उसी प्रकार का होता है, इसमें ब्लीडिंग और क्लॉटिंग के चांसेस होते हैं। तो इसकी भी 1 या 2 डोज दे करके हम वापस हमारे पुराने कोर्स को रिज्यूम कर सकते हैं। उसको भी देने का वही तरीका है कि 1 डोज मॉर्निंग में दीजिए, कुछ घंटे वेट करिए,
कुछ घंटे वेट करने के बाद, 6 घंटे वेट करने के बाद हम वापस अपने कोर्स को रिज्यूम कर सकते हैं। टोटल एसाइटिस के पेशेंट की एक बात और होती है कि वो चिंतित बहुत होता है, वो अपनी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स को, अपने मॉनिटर को बार बार चेक करता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि ऐसा मिल रहा है तो टोटल एसाइटिस उसको दी जा सकती है। और इसके अतिरिक्त ओफिलिया की 2 और दवाइयां होती हैं, एलेक्सफॉर जो चिली रेमेडी है, चिली लेकेसिस कहलाती है, उसको दी जा सकती है। बाइपेरा होती है, बाइपेरा भी इस रूप में दिया। तब तो इन सब दवाइयों को बहुत ही सोच विचार करके यूज करना चाहिए, पेशेंट की कंडीशन देखकर करना चाहिए। इसके अलावा लेकेसिस की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एक कार्बोवेज होती है, कार्बोवेज निमोनिया की बहुत अच्छी दवा है। कार्बोवेज हमारी होम्योपैथी में आप जैसे जानते ही हैं कि कार्बोवेज समझीन में कहलाती है। ये लास्ट स्टेज की मेडिसिन होती है, यदि पेशेंट लास्ट स्टेज में भी आ गया है तो ये वहां से उसको पेशेंट को वापस कार्बोवेज का समय कार्बोवेज का उपयोग बहुत हो रहा है। येलो या ग्रीन कलर का इसका डिस्चार्ज होता है, उसकी खांसी में भी ब्लड आता है, ब्लड थूकता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में ही स्पिट्स द ब्लड, बहुत ज्यादा कमजोरी होती है। कार्बोवेज पेशेंट की पहचान ये होती है कि उसका शरीर ठंडा हो जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, परंतु इसके बावजूद उसको हवा की बहुत आवश्यकता है। वो कहता है मेरे चेहरे पे हवा, उसको हवा की बहुत जरूरत है। उसकी बॉडी ठंडी परंतु हवा की जरूरत है, और कमजोरी बहुत अधिक है। उसकी पल्स भी देखें तो परसेप्ट नहीं होती, बहुत धीमी पल्स होती है, नहीं मिलती। ऐसे पेशेंट को कार्बोवेज देना बहुत जरूरी है, और उसकी फ्रिक्वेंट डोजेज दी जा सकती है जब तक कि वो ठीक नहीं। ऐसा पेशेंट कोमा में भी हो सकता है, कॉन्शियस भी हो सकता है और अनकॉन्शियस भी हो सकता है। जनरली अभी पेशेंट वेंटिलेटर पे बहुत सारे पेशेंट मिल रहे हैं। यदि ऐसा पेशेंट जब वेंटिलेटर पे भी है तो वो लास्ट स्टेज में महसूस, तो ऐसे पेशेंट के यदि हाथ पे ठंडे मिल रहे हैं, ऑक्सीजन चूंकि उसको मेंटेन हो रही है ऑक्सीजन के द्वारा, तब भी ये दवा उसको काम आ सकती है। ऐसे पेशेंट को ऐसी दवा दी। दोस्तों, इसके अतिरिक्त कार्बोवेज से मिलती जुलती, जैसे बॉडी ठंडी उसकी हो रही है, ऐसी एक दवा है कैम्फर। कैम्फर भी लास्ट स्टेज की निमोनिया की बहुत अच्छी दवा है। इसके पेशेंट का पूरा शरीर ठंडा बर्फ के समान हो जाता है जब वो लास्ट स्टेज में आता है। उसको उसके सम की म्यूकस की ओवरलोडिंग होती है, पूरा उसका पेसेस पूरा भरा रहता है, भर जाता है, खास करके बलगम भी नहीं निकाल पाता है। और ऐसा पेशेंट सडन रेस्पिरेटरी फेलियर में जाने के चांस, तो ऐसे पेशेंट को कैम्फर की फ्यू डेज, 2-3 खुराक, एक खुराक से भी वो वापिस आ सकता है। उसकी पहचान पूरा शरीर ठंडा होना, पूरा बलगम भरा होना और सडन रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ। तो ऐसे पेशेंट को कैम्फर 1 ml की कुछ डोजेज वापिस कर। कैम्फर की तरह एक और दवाई होती है पेंटामेलबम। पेंटामेलबम भी में भी बॉडी सडन रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, बॉडी उसकी भी ठंड की तरफ होती है, परंतु ठंड कहाँ मिलती है, उसके ठंड मिलती है फोरहेड को, उसका फोरहेड ठंडा हो जाता है, वहां ठंडा पसीना, परंतु रेस्ट ऑफ द बॉडी उसकी हॉट होती है। जब कोलेप्सिक कंडीशन आती है तो उसके माथे पर ठंडा पसीना आएगा और सडन रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस रहेंगे। इस
देखिए 3 दवाइयां हो गई ठंड की, कार्बोवेज, कैम्फर, पेराटेमल। पेराटेमल में माथे पे ठंडा पसीना, कैम्फर में पूरा शरीर ठंडा होना, कार्बोवेज में पैर हाथ पे ठंडे होना, और साइनोसिस, फेस पे साइनोसिस में ब्लूनेस मिलना। ये ब्लूनेस पेराटेमल में भी मिल सकती है। रेस्पिरेटरी फेल्यूर इसमें सडन होता है, इसमें कोलेप्स होने लगता है। पेराटेमल के डिस्चार्जेस जनरली ग्रीनिश होते हैं। इस बेसिस पर पेराटेमल भी दी जा सकती है। दोस्तों इसके अतिरिक्त भी कुछ दवाइयां हैं जो निमोनिया में और पेशेंट की लास्ट स्टेज की, अभी हम देख रहे हैं कि अभी और भी ज्यादा लोगों की हालत खराब हो रही है, तो ऐसे मौके पर कुछ दवाइयां काफी काम आ रही हैं, जिसमें एक दवाई बेरेटमब्राइड। बेरेटमब्राइड में निमोनिया जो होता है उसमें हेपेटाइजेशन पहले होने की स्टेज, उसको लंग्स में हेपेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, उसके पहले की स्टेज में यदि किसी पेशेंट को बेरेटमब्राइड की जरूरत पड़ती है तो उसके सिम्टम में सबसे खास बात होती है तो उसको एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, उसको पैल्पिटेशन होने लगता है, पल्स काफी रैपिड हो जाती है, यानी 120-30 के ऊपर भी जाने लगती है। तब ऐसे पेशेंट को बेरेटमब्राइड की 1-2 खुराक देकर कुछ डोज से उसको वापिस आ जाता है। बेरेटमब्राइड हमेशा लोअर पोटेंसी में ही यूज करना चाहिए। 6 या 30 की 1-2 डोज, 3 डोज उसको उस बीमारी पूरा वापिस ले आती है, उसको पल्स को डाइन करती जाती है और निमोनिया को मॉडिफाई करती है। रैपिड पल्स धीरे धीरे स्लो होती है और जैसे जैसे पल्स स्लो होती है वैसे वैसे उसका निमोनिया ठीक होने लगता है। परंतु इसको देने के पहले ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस पर हेपेटाइजेशन नहीं हो गया। यदि हेपेटाइजेशन हो चुका है तो बेरेटमब्राइड वहां काम नहीं है। दोस्तों इसके अलावा एक दवा है, इसमें पल्स हाई हो गई। अब आपको एक बात, अब हाई हो गई, यदि लो हो जाए तो भी इतनी लो कि 30 हो गई, तो एक पेशेंट, कई पेशेंट इस प्रकार की जिनकी पल्स डाउन हो रही है और डाउन होते होते 30 तक आ गई, तब भी उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है लॉरोस्ट्रेसर। लॉरोस्ट्रेसर निमोनिया की बहुत अच्छी दवा है। लॉरोस्ट्रेसर की पहचान ये है कि उसको खांसने में, जब वो खांसता है उसका बलगम निकलता है तो उसकी बलगम में, उसके डिस्चार्ज में ब्लड के छींटे दूर दूर स्कैटर्ड रहते हैं, स्प्रिंकल्ड होते हैं, फैले रहते हैं, और उसकी पल्स जो है उसकी 30 के नीचे जाने लग, 25, 30, 40 आ गई, 30 आ रही है, तो ऐसे पेशेंट को लॉरोस्ट्रेसर देना चाहिए। लॉरोस्ट्रेसर में जनरली किडनी का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत अधिक तौर पर। ऐसे पेशेंट को ये जब रिएक्टिंग पावर कम होती है तो लॉरोस्ट्रेसर ताकत के रूप में भी उसको बढ़ाती है, उसको रिएक्टिव पावर बढ़ा देती है, उसकी सांस बहुत अधिक फूलती है, जिलेटिनस एक्सपोक्टोरेशन होता है। तो लॉरोस्ट्रेसर की डोज, उसमें पल्स की स्पीड यानी पल्स का कम होना सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। लॉरोस्ट्रेसर उस समय बहुत अधिक उपयोगी होती है, आप कभी ट्राई करके देखिए। दोस्तों मैंने अपने लाइफ में जो होम्योपैथी से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया, उसमें एक दवा है कैक्टस कैनिकुला, जिसका मैंने काफी अच्छा उपयोग अपने पेशेंट के ऊपर किया और हमें उसको कई जगह बहुत सफलता मिली। यदि कैक्टस दी है तो हमको सफलता ही मिली। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा निमोनिया की दवा है, ये एक अलग बात है, पर उसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसमें हेमरेजिक टेंडेंसी, उसके लंग्स में, नोज में, स्टमक में, रेक्टम में, ब्लडर में, हर जगह ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं, कंजेशन हो जाता है। साथ ही ये एक हार्ट टॉनिक होता है। जब पेशेंट के चेस्ट में पेन हो, उसके हार्ट में पेन,
उसको हार्ट को ऐसा लग रहा है कि कोई उसके चेस्ट को तार की तरह बांध दिया है, उसके ऐसे ग्रास्पिंग पे कोई उसके हार्ट को हाथ में लेके छोड़ रहा है, फिर दबा रहा है, फिर छोड़ रहा है, फिर दबा रहा है, फिर छोड़ रहा है, ऐसा हो रहा है। और उसका चेस्ट उसको लग रहा है कि बंधा हुआ है। ऐसे पेशेंट में हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं आगे निमोनिया में। और सबसे अच्छी बात होती है कि ये हार्ट अटैक रोकने की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। मेरे द्वारा काफी उपयोग की गई है, हमने अपनी क्लिनिक में इसको बहुत उपयोग किया। ये हार्ट के अंदर क्लॉटिंग रोकने की एक ऐसी दवा है कि यदि आपने ये दी है तो ऐसे पेशेंट को इंटरवल में के रूप में दिए। कैक्टस ग्रैंडिफलोरा की डाउटफुल है कि यहाँ पर चेस्ट पेन भी हो रहा है और मिल रहा है कि हेमरेज में, तो उसको 1 या 2 खुराकें दिए, 2 या 3 रोज में, 7 रोज में दी जाए तो उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस काफी कम होते हैं। साइमल्टेनियसली ये ब्रेन में भी क्लॉटिंग को रोकने का काम। अदरवाइज तो ये ओल्ड एज की बहुत अच्छी दवा है। जब हमारे हार्ट एथिरोमास हो जाता है, एथिरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, तभी उस समय इस दवा का काम बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। परंतु कोरोना में इसका उपयोग निमोनिया में इस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि हार्ट फेल से पेशेंट की डेथ हो रही है, तो उस समय ये दवा काफी हद तक काम आती है। दोस्तों, अधिकतर पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहे हैं, उनके लंग्स की पैरालिसिस हो रही है। ऐसे में एक दवा लंग्स की पैरालिसिस की बहुत अच्छी दवा है, क्यूरेयर। हम उसको कुरारी बुरारी बोलते हैं, क्यूरेयर। क्यूरेयर में एक केमिकल होता है क्यूरेनाइन, जो मोटर नर्व्स के एंड ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि उसकी पूरी मसल्स इंटैक्ट रहती है। तो वो इस प्रकार का पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जाने लगता है, पैरालिसिस होने लगती है लंग्स की, उसकी वेगस नर्व की पैरालिसिस हो जाती है और उसका हार्ट का एक्शन बहुत एक्सीलरेटेड हो जाता है। ब्लड प्रेशर, यद्यपि ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता उसका, तो ऐसे पेशेंट को क्यूरियर की हाई पोटेंसी 1 या 2 खुराक उसको लंग्स के पैरालिसिस से बचा लेती है। और अभी हमने जो भी दवाई दी शुरू से आखिर तक निमोनिया के पेशेंट्स को अलग अलग फेजेस में दी, तो उसमें पहले से भी हमारी जो दवाई दी उससे खास बात होती है कि हमने जब दवाई शुरू में दी पहली फेज में, शुरुआत के दिनों में ही पेशेंट आ गया, तो हमारी बीमारी को हमने अधिकतर कैसे दिखा के वहीं रोक दी, तो इसका हमारे को एंड स्टेज में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरे स्टेज में आ गया, यानी जहाँ पर एक्टिवेशन हो रहा था, तो हमने वही बीमारी रोक दी, हेमरेज आने नहीं दिया। उसके लिए हमने जो दवाइयाँ दी उसमें एंटीमार्ट है, एंटीटार्ट है, ब्रायनिया है, फॉस्फोरस है, इस प्रकार की दवाइयाँ पहले ही उपयोग में ले रही थी। तो हमारे अधिकतर पेशेंट उसी स्टेज पे वहीं से कंट्रोल हो गए। लास्ट स्टेज के पेशेंट जब वेंट, उसमें ये दवाइयाँ अधिकतर केसेस में काम आ सकती हैं, तो वहां पर कुछ एक पेशेंट को हमको देने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आप इस बीमारी में न्यूमोनिया के आपको समझ में आ गया, बुखार का समझ में आ गया, परंतु इसके अतिरिक्त और भी सिम्टम्स लोगों के आ रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस आज के समय में बहुत तेजी से हो रहा है, तो उसमें बुखार के साथ में आंखों का लाल हो जाना, रेडनेस ऑफ आइज, कंजक्टिवा रेड होना, अचानक ही आंखें लाल हो गई, अचानक ही टेम्परेचर आ गया, पानी की प्यास नहीं नहीं लग रही, बुखार में उसके पैर ठंडे, अपर पार्ट बॉडी हार्ट उसकी आंखों में आर्टिफिशियल लाइट से चिड़चिड़ापन लगना, उसको सहन नहीं होना। ऐसे पेशेंट की दवा, आप समझ गए कि बेलाडोना इस प्रकार के पेशेंट की दवा होती है। कंजक्टिवाइटिस में बेलाडोना की सबसे खास पहचान होती है कि उसमें कंजक्टिवा रेड होगा, परंतु उसमें कोई डिस्चार्ज नहीं, ड्राई आइज है।
तो ड्राई आइज के बेसिस पर, कंजक्टिवाइटिस के बेसिस पर हम उसको ऐसे पेशेंट को बेलेडोना देंगे तो वो ठीक होगा। इसके अतिरिक्त कंजक्टिवाइटिस में यूफ्रेशिया एक दवा होती है। तो पेशेंट में यूफ्रेशिया के सिम्टम में खास होता है कि उसको म्यूकाइड, तो आंखों में कंजक्टिवाइटिस के साथ म्यूकाइड डिस्चार्ज होता है, थिक डिस्चार्ज होता है, ग्रीन येलो डिस्चार्ज होता है, जो कि एक्रिड होता है, आंख में जलन पैदा करता है। बाहर आने पर भी आइस को आसपास बहता हुआ आता है तो नीचे फेस के ऊपर भी जलन पैदा, आंखों के अंदर उसको इरिटेशन होता है, ऐसा उसको ऐसा लगता है कि उसकी आंखें वो बंद करना चाहता है तो बंद नहीं कर पाता, गड़ने जैसी स्थिति में महसूस होती है आंखों में। तो ऐसे पेशेंट को हम यूफ्रेशिया की दे करके ठीक कर सकते हैं। यूफ्रेशिया के अलावा एक इससे भी अधिक कंट्रोल नहीं है, इसका अलग पेशेंट है। तो मर्कसॉल एक दवा है जिसके अंदर आंखें लाल, कंजक्टिवाइटिस होना, आंखों में जलन होना, परंतु इसका डिस्चार्ज पतला होता है, एक्रिड होता है डिस्चार्ज। यूफ्रेशिया का डिस्चार्ज गाढ़ा होता है, हरा पीला होता है, और मर्कसॉल का डिस्चार्ज जो होता है एक्रिड होता है और थिन होता है। कंजक्टिवाइटिस, रेडनेस मिलता है। और मर्कसॉल के सिम्टम प्रोफ्यूज सैलिवेशन, एक्सेसिव पर्सपिरेशन और डिस्चार्ज में से बदबू आना, ये खास सिम्टम है। जब ये सिम्टम मिल रहे हो तो मर्कसॉल का उपयोग कर सकते हैं। कुछ पेशेंट में जब रेडनेस ऑफ आइज हुई तो उन लोगों ने घर में अपनी बाहर से कुछ एंटीबायोटिक बुला करके ट्यूब डालने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे पेशेंट में कंजक्टिवाइटिस बढ़ते बढ़ते पैटर्न अल्सरेशन तक चली जाती है, कॉर्निया में अल्सरेशन होने के चांस, कंजक्टिवा में अल्सरेशन होने के। तो ऐसे पेशेंट को जिसको अल्सरेशन हो रहा हो, कॉर्निया में परफोरेशन होने के चांसेस हो रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को मर्कॉर बहुत अच्छी दवा होती है और मर्कॉर को इस समय उपयोग किया जाता है। ये सारी दवाइयां कंजक्टिवाइटिस सभी 3 साल को कवर कर सकती हैं और इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। बेलेडोना में ड्राइनेस, यूफ्रेशिया में ग्रीन येलो फिल्म, ग्रीन येलो डिस्चार्ज, मर्कसॉल में थिन डिस्चार्ज और मर्कॉर में अल्सरेशन या अल्सरेशन। दोस्तों मैंने कंजक्टिवाइटिस के लिए बता दिया, कुछ दवाइयां छूट गई थी तो आपकी निमोनिया के लिए मैं एक दो लाइन की दवाइयां हैं जो एक दो सिम्टम्स के बेसिस पर पूरी बीमारी ठीक कर सकती है। इसमें एक सबसे अच्छी दवा है सेंगुइनेरिया कैनाडेंसिस। सेंगुइनेरिया कैनाडेंसिस जो दवा है वो निमोनिया की बहुत अच्छी दवा है। इसका स्पुटम रस्टी होता है, बहुत ऑफेंसिव होता है। जब पेशेंट स्पुटम बाहर निकालता है, थूकता है, एक्सप्लोरेट करता है तो उसको खुद को इतनी बदबू आती है कि वो उसको अपनी उसको बदबू सहन नहीं होती। इसके अतिरिक्त उसमें एक सिम्टम होता है कि उसके पाम्स एंड सोल्स में बर्निंग होती है। जब उसके पाम्स एंड सोल्स में बर्निंग हो, स्पुटम रस्टी हो, और स्मेल इतनी अधिक हो कि उसके मुंह से बदबू आ रही है, उसके खुद को डिस्चार्ज से बदबू महसूस हो रही हो, खुद को अपनी मुंह से निकालने में बदबू, तो ऐसे पेशेंट को सेंगुइनेरिया कैनाडेंसिस दी जा सकती है और वो उसको ठीक कर। एक बड़ी बहुत बड़ी दवा है लाइकोपोडियम, जो निमोनिया में काम आ सकती है और निमोनिया में काम आ रही है। लाइकोपोडियम में एक खास बात होती है कि ये राइट साइडेड मेडिसिन है। राइट साइडेड मेडिसिन, इसमें निमोनिया राइट साइड से शुरू होकर के लेफ्ट साइड जाता है। लाइकोपोडियम पेशेंट की पहचान होती है कि जब वो निमोनिक स्टेज में होता है, इस प्रकार की बीमारी सीरियस बीमारी की तरफ बढ़ता है,
तो उसको सांस की तकलीफ हो रही है, निमोनिया हो रहा है, तो उसकी नाक की विंग्स पहले ही नाक उसके चलते हैं, ऐसे अंदर बाहर होते रहते हैं, ये इसकी एक पहचान होती है। निमोनिया के पेशेंट लाइकोपोडियम का जो होता है उसमें सपोर्टिव स्टेज में आता है। जब सपोर्टिव स्टेज हो, उसका हरा पीला बलगम आ रहा हो, तभी लाइकोपोडियम काम है। लाइकोपोडियम का एक और बहुत बड़ा सिम्टम है कि उसके एक पैर ठंडा एक पैर गर्म होता है। दोस्तों, जब इस प्रकार का सिम्टम मिल रहा हो, एक पैर ठंडा है एक पैर गर्म है, उसकी एलई नासी चल रही है, तब ऐसे पेशेंट को लाइकोपोडियम दी जा सकती है। उसकी बीमारी राइट साइड से शुरू होकर के लेफ्ट साइड, पर लाइकोपोडियम देने के पहले हर प्रकार से कंफर्म हो जाना चाहिए। पेशेंट थर्स्टलेस होता है और लेफ्ट से राइट जा रही है तो लेफ्ट। जस्टिसिया आधा टूड़ा एक दवाई होती है। हमने अपने निमोनिया के केसेस में, इसमें कोरोना के केसेस में देखा कि निमोनिया से हटकर पेशेंट की शुरुआत में, बहुत से पेशेंट की आपने देखा हो कि बहुत से पेशेंट की शुरुआत में ही लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट हुआ। तो लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट के लिए बहुत अच्छी दवा होती है जस्टिसिया आधा टुकड़ा। इसकी खांसी, इसमें खांसी भी होती है, जो साथ में सांस फूलना और चेस्ट के अक्रॉस उसको टाइटनेस महसूस होती है। गर्म रूम में जाने से, गर्म कमरे में जाने से उसकी खांसी। ऐसे पेशेंट को जस्टिसिया आधा टुकड़ा देने से उसकी लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट वापिस हो जाते हैं, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं और कोरोना कंट्रोल हो जाता है, कोविड ठीक हो जाता है। जस्टिसिया आधा टुकड़ा एक ऐसी अकेली दवाई है जिसमें ये दोनों सिम्टम बहुत अच्छे तरीके से कवर किए। उसको बहुत सारे डॉक्टर्स के द्वारा उपयोग भी किया गया और उसके सबसे अच्छे रिजल्ट मिले। मैंने भी काफी उपयोग किया, हमने अपनी क्लिनिक में काफी पेशेंट को। निमोनिया के केसेस में इसके अतिरिक्त काली मोर एक दवा होती है। यदि उसका बलगम, उसका फ्लम तार की तरह निकल रहा है, निकल नहीं पा रहा है, स्टिंजी है, तो व्हाइट फ्लम आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को काली मूर दी जा सकती है। काली मूर बायोकेमिक में आप साइमल्टेनियसली दे दें, परंतु फेरमफास दे रहे हैं तो काली मूर ना दें, काली मूर दे रहे हैं तो फेरमफास ना। काली मूर 6 में गर्म पानी में घुल कर देने से उसका बलगम नरम होकर के निकल सकता है, आसानी से निकल सकता है और आपकी इंडिकेटेड मेडिसिन चली रही है। निमोनिया की एक बहुत अच्छी दवा और है सेनेगा। इसके सेनेगा का बलगम जो होता है काफी एल्ब्यूमिनस होता है, स्टिंजी होता है। सेनेगा एक बहुत अच्छी दवा है निमोनिया की। इसमें स्टिंजी फिल्म रहता है पूरा, उसका लंग्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है ओवरलोडेड होती है मुकत की, और वो भी आसानी से खांस करके बलगम नहीं निकाल पाता है। जैसे कि एंटीम्प्राट में कमजोरी की तरह नहीं निकाल पाता, और सेनेगा में स्टिंजी रोपी होने के कारण से नहीं निकाल पाता, उसको चेस्ट के ऊपर बहुत भारीपन महसूस होता है। परंतु सेनेगा पेशेंट निमोनिया में उसके बलगम में ब्लड भी आता है, तो
जगह जगह ब्लड थूकता रहता है। परंतु ऐसा पेशेंट की हिस्ट्री लेने पर यदि आपको मालूम पड़ेगा कि वो ट्यूबरकुलर है, तभी ये दवा ज्यादा काम है। यदि उसकी फैमिली में टीबी मिल रही है, किसी पेशेंट को, किसी मदर को, फादर को, या उसको टीबी मिल रही है, उसको, या उसने स्वयं भी कभी पहले टीबी हो चुकी है और ऐसे पेशेंट को बाद में निमोनिया होती है, तो इसका निमोनिया लोअर लोब से शुरू होता है, राइट साइड के लोअर लोब से शुरू होकर के बाद में लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। ट्यूबरकुलर हिस्ट्री नहीं हो, अब इसको सोच समझ के इसकी सेनेगा की खांसी होती है कि जनरली इसकी खांसी छींकों में ही खत्म हो, यानी खांसने के एंड में उसकी छींक चलती है। शुरुआत की स्टेज में वो मिल सकता है। सेनेगा के पेशेंट की एक चीज होती है कि उसका पेशेंट बताएगा कि उसमें ऐसा लग रहा है कि उसके लंग्स जो है पीछे की तरफ, स्पाइन की तरफ खींच रहे हैं, अंदर की तरफ कोई खींच रहा है, पीछे की तरफ कोई खींच रहा है, तो ऐसे पेशेंट को सेनेगा दी जाती है। सेनेगा लोअर पोटेंसी, हायर पोटेंसी, अपने पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। क्योंकि पेंडेमिक फेज है, हमने निमोनिया के लिए जो दवाइयां दी हैं वो पेंडेमिक फेज को देखते हुए डिसाइड की, क्योंकि इसमें सिम्टम्स जो होते हैं, हम इसमें मेंटल सिम्टम नहीं ले नहीं सकते, पैथोलॉजिकल सिम्टम को ही और टेस्ट, पैथोलॉजिकल टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, प्रेजेंट कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए ही ये दवाई डिसाइड की जा सकती है। इस प्रकार के पेशेंट में जो मेडिसिन डिसाइड होती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर ज्यादा वर्क करना चाहिए, ऐसी ही जब दवाई डिसाइड की जाए मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ ना जाए तो उसको रोक सकें। दोस्तों, हमने आपको निमोनिया के बारे में बता दिया, कंजक्टिवाइटिस हो रही है उसके बारे में भी जानकारी दे दी, बुखार के बारे में बताया। इन सब में आपको अलग अलग इन सब बातों का ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन लेवल कहाँ रख मेंटेन करना है, टेम्परेचर कहाँ मेंटेन करना है। यदि एक मेडिसिन पेंडेमिक फेज में काम नहीं कर रही है पूरा, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन या फॉलोजबेल मेडिसिन उसको दी जा सकती है। जैसे एंटीमटार्ड की फॉलोजबेल मेडिसिन इपिकॉक है, फास्फोरस की ब्रायनिया भी है, आर्सेनिक की ब्रायनिया भी है। तो इस प्रकार से एक सिस्टम के तहत उसमें इंटरवल रखते हुए एक दो मेडिसिन को उपयोग किया जा सकता है और पेशेंट को फायदा पहुंचाया जा सकता है। आज मैंने आपको कोविड-19 और उसके बारे में बताया, निमोनिया के बारे में बताया। दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं कि फंगस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये एक नई एक सिम्टम्स, नया कॉम्प्लिकेशंस उभर करके आ रहा है, जिसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। फंगस वहां भी पैदा होता है जहाँ हाइजीनिक कंडीशन सही नहीं हो, एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन के कारण भी पैदा हो रहा है। दोस्तों, आयुष डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया कि अभी आर्सेनिक एल्बम म्यूकोरमाइकोसिस फंगस के लिए बहुत अच्छी दवा है। और चूंकि हमने पेंडेमिक में ही जब प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर में पहले ही आर्सेनिक एल्बम हमने जितने पेशेंट को दे दी है और जिन ने भी आर्सेनिक एल्बम ली है उनको ये बीमारी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं इस हिसाब से। और म्यूकोरमाइकोसिस के ऊपर कोरोना के जो लोग एलोपैथी दवाइयां ले रहे हैं और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हैं उनके लिए, और जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन उनकी बॉडी में आ रहे हैं, कोई
कोई साइड इफेक्ट आ रहे हैं, कोई इफेक्ट आ रहे हैं। तो ऐसे सभी पेशेंट के लिए जो हमने एक स्टडी चल रही है, और उसके लिए हम कुछ ही दिनों में आप एक और क्लास लेंगे और आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे कि हम लोग किस प्रकार से। दोस्तों, मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई, आप उसके बेसिस पर अनुभव का लाभ लें, लोगों को उसके लिए फायदा पहुंचाएं, लोगों की सेवा करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं जाने से पहले हमारे स्टाफ, हमारी टीम, जिसमें डॉक्टर रीना, डॉक्टर तप्ती, डॉक्टर आयुष, इन सबका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और डॉक्टर रोमिल का भी, जिन्होंने इस पूरे समय पर साल भर हमारे लिए कोरोना के काल में बिना छुट्टी लिए सब पूरी मेहनत के साथ कोरोना के पेशेंट्स का और सभी पेशेंट का इलाज करने में हमारी मदद की और अपना पूरा संपूर्ण डिवोशन से उसको काम को किया। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर रोमिल को अब आगे बुलाता हूँ कि वो आकर आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताए, क्योंकि इस पूरी बीमारी में इन्वेस्टिगेशन की बहुत अधिक आवश्यकता है। अलग अलग दिनों पर अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया। धन्यवाद। डॉक्टर उम्मीद आए। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वॉइस ऑडिबल है ना? गुड इवनिंग टू ऑल। सबसे पहले मैं सर को थैंक यू करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। आज सर के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। आप लोगों के साथ साथ हम लोगों को भी बहुत सारी चीजों का नॉलेज मिलता है। सर जब भी कोई बात करते हैं कुछ ना कुछ नया जरूर बता देते हैं। आज हमें पास्ट हिस्ट्री और इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजों के बारे में उसको समझने को मिला हमें। अब हम ये जानेंगे कि पैथोलॉजिकल टेस्ट क्यों जरूरी है कोविड में। बहुत बार हम सोचते हैं होम्योपैथी में टेस्ट क्यों कराएं, भाई पैथोलॉजी का क्या यूज है, यहाँ टेस्ट का क्या काम है। जब पेंडेमिक का फेज चल रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत बार पेशेंट पूरे हाल सही से नहीं बता पा रहा है। सिम्टम्स इंटरमिंगल्ड हो रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में। तो यहाँ हमारे को जो पैथोलॉजिकल टेस्ट हैं वो बहुत सारी चीजें बताते हैं। जो मुख्यतः जो टेस्ट हो रहे हैं कोविड में, उनमें सबसे पहला है सीआरपी, डी डाइमर, एलडीएच, फेरिटिन, IL-6, CBP, LFT, RFT और RBS। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से दिनों में ये टेस्ट कराने चाहिए और क्या इंपॉर्टेंस है इन टेस्ट की उन दिनों में। साथ में एक्सरे और सिटी स्कैन भी मस्ट है। हमें ये ध्यान रखना है कि पैथोलॉजिकल टेस्ट बहुत बार हमें ये गाइड कर देते हैं कि आपको कौन सी तरफ, कौन सी मेडिकेशन की तरफ जाना है, किस प्रकार का केस प्रोग्रेस कर रहा है और आपको क्या क्या ध्यान रखते हुए दवाइयां देनी है, कब आपको दवाइयां चेंज करनी है, कब आपको उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन पे जाना है, पोलोजोल पे जाना है। ये भी हमें दवाइयां बहुत बार मालूम पड़ जाती हैं टेस्ट के द्वारा। तो डे 1 जो कोविड का होता है, पेशेंट हमारे पास आता है, सबसे पहले आकर के वो बेसिक सिम्टम्स हमें बताता है। उस दिन हम लोग को उसे CBP और CRP और साथ में ये साथ एडवाइस करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक मार्कर्स हैं कोई भी इन्फेक्शन के। उसके बाद डे 3 या डे 4 अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज, अगर डिसीज बढ़ रही है उस पेशेंट में तो हमें वहां पर टेस्ट कराने हैं। अगर मान लीजिए पेशेंट बिल्कुल ठीक है तो उस समय ना करा के हम थोड़ा सा आगे भी करा सकते हैं। बट डे 3 या डे 4 में भी हमें CBP, CRP, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को पहले से कोई हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस
कोई अंडरलाइन डिसीजेस या ऐसी कोई बीमारियां चल रही थी, तो इसमें यहाँ पर डी डाइमर और फेरेटिन ऐड करना जरूरी है, साथ में एलडीएच भी एक बार। तो डे 4 या डे 5 में हमारे लिए ये काम आ जाता है। देन डे 6, डे 7 अगर किसी की बीमारी कंटिन्यूस प्रोग्रेस हो रही है, या फिर ये मान लें कि उसकी ऑक्सीजन लेवल्स कहीं फ्लक्चुएशन होना शुरू हुआ है, ये स्लाइटली फ्लक्चुएशन अभी आना शुरू हुए हैं, तो हमें एक्सरे कराना जरूरी रहता है। इफ इट इज गोइंग बिलो 95 और वो 23 से डाउन आ रहा है, तो सिटी स्कैन, HRCT, चेस्ट कराना चाहिए हमें वहां पर। डे 9 और डे 10 पे अगर हम आते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत बार पेशेंट डे 3-4 तक बहुत अच्छा बोलता है कि मैं बिल्कुल बढ़िया हो गया हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं सर, मुझे टेस्ट क्यों कराने हैं। पर हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, तूफान के पहले की भी कई बार शांति होती है, एक साइटोकाइन स्टॉर्म होता है जो आता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि साइटोकाइन स्टॉर्म आएगा और अगर किसी को तहस नहस कर सकता है, वहां पर सडन ऑक्सीजन फॉल होती है, जहां पर ये चीज देखी जाती है 12th और 13th डे पे। और उसके रिस्क को बचाने के लिए 9th और 10th डे पे हमें CBP, ESR, CRP, डी डाइमर, फेरेटिन, LDH, IL-6 हमारी मदद कर सकता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है IL-6, क्योंकि ये CRP बढ़ेगा तो IL-6 बढ़ता ही है, बट IL-6 आपको ये बता देता है कि भाई कोई स्टॉर्म आने वाला है कि नहीं। इसलिए 5th और 6th डे और 10th डे के आसपास मैं जरूर कहता हूँ कि ये कराना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सर से यही सीखा है कि आप उनको कराओ और पेशेंट की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें। हाँ, कोई पेशेंट को कोई अंडरलाइंग कंडीशंस नहीं है, उसे कोई बीमारी नहीं है, तो हमें अननेसेसरी उसकी टेस्टिंग नहीं करानी है। हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी आवश्यकता अनुसार उसकी ऑक्सीजन लेवल्स, उसकी टेम्परेचर, जैसा सर ने हमें समझाया अभी, अगर वो सब परफेक्ट चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो हम उस चीज को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। CBP में हमें क्या देखना है? CBP में हमें सबसे पहले हीमोग्लोबिन का ध्यान रखना है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हीमोग्लोबिन जो हमें लड़ने की ताकत देती है, वो कैसी है। मान लीजिए कोई ऑलरेडी एनीमिक है, तो उसको कोई और नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो जल्दी कोई परेशानी में तो नहीं पड़ जाएगा, उसका ध्यान रखना जरूरी है। देन उसके बाद हम आते हैं TLC, यानी कि WBCs पर हम लोग जो देखते हैं। WBCs का एक पैटर्न ये देखा गया था कि पहले ये WBCs लो हो रहे थे, कम जा रहे थे, बट अभी कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि या तो नॉर्मल भी रह रहे हैं या फिर वो नॉर्मल से ज्यादा भी आ रहे हैं। तो इसलिए अभी ये श्योरिटी नहीं हो रही है कि WBC क्या सेम पैटर्न में वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या रिपोर्ट्स में WBC हमें हमेशा हर बार कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर उसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई कोरोना है कि नहीं। उसके अलावा हमें ये देखना है इओसिनोफिल्स को। मान लीजिए इओसिनोफिल्स कम हो रहे हैं अगर, तो ये एक इन्फ्लामेशन मार्कर है, इसका हमें ध्यान रखना है। अगर इओसिनोफिल्स कम होते हुए दिख रहे हैं रिपोर्ट्स में आपको, तो दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का जो रेशो है वो कैसा चल रहा है। अगर मान लीजिए वो अब तक अप टू 3 है, तो दैट इज सेफ, स्टिल सेफ। अब फ्रॉम 3 to 6 इट इज डेंजर, एंड अबव 6 इट इज कंडीशन, वेरी सीरियस कंडीशन। मतलब वहां पर हमें कई बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी आ जाती है, क्योंकि दैट में लीड टू अ स्टॉर्म। तो हमें ये ध्यान रखना है कि NLR, जो न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट रेशो है, वो कितना चल रहा है। लिम्फोसाइट जनरली वायरल इन्फेक्शंस में बढ़ते हैं, बट इस वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स कम हो रहे हैं, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब हम आगे आते हैं दूसरे टेस्ट पे, CRP पे। CRP एक इन्फ्लामेटरी मार्कर है। तो अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, किसी भी किस्म का कोई इन्फ्लामेशन चल रहा है, तो ये CRP हमें बताता है। कई बार ये होता है कि आपने पहले दिन दूसरे दिन CRP कराया और काफी ज्यादा आया, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें ये भी रूल आउट करना है कि ऑलरेडी उससे कोई SLE तो नहीं था, या ऑलरेडी डायबिटिक तो नहीं है, या आर्थराइटिस का पेशेंट तो नहीं है, या ऑलरेडी कोई अंडरलाइंग ऐसी कंडीशन तो नहीं चल रही जहाँ इन्फ्लेमेशन हो सकता हो। अगर वो सब नहीं है और उसकी बीमारी तेजी से प्रोग्रेस हो रही है, तो हमें CRP का ध्यान रखना है, इन्फ्लेमेशन किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि ये बाकी मार्कर्स को भी बढ़ाएगा। अब हम आ जाते हैं फेरेटिन पे। तो फेरेटिन में हमें ये देखना है कि भाई आयरन लेवल्स हैं, आयरन लेवल्स ओवरलोडेड हैं या कम है। कम है तो ठीक है, कोविड में इतना रिस्की नहीं माना जा रहा है, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है। बट अगर ज्यादा है तो दैट इज डेंजरस। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि फेरेटिन के लेवल्स किस प्रकार से जा रहे हैं, क्योंकि फेरेटिन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्कर ऑफ साइटोकाइन स्टॉर्म। इसके बाद हम आते हैं LDH पे। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन रात आपसे कह रहा है मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कमजोरी आ रही है, मेरे से बन ही नहीं रहा है, और मेरे पैरों में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है, मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है, मतलब टिश्यूज में डैमेज अगर लग रहा है कहीं पर भी आपको, कोई उनके सिस्टम्स में, क्योंकि ये LDH सब जगह पर पाया जाता है, तो अगर कहीं पर भी ऐसे कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं, यूरिन में, मोशन में, स्टूल्स में, कहीं भी कोई दिक्कत है, तो LDH हमें जरूर कराना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं IL-6 पे।
IL-6 इज टिपिकल इंडिकेटर ऑफ साइटोकाइन स्टॉर्म। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा कि साइटोकाइंस क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके हाइपोथैलेमस में जाके क्या कर रहे हैं, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि जो एक स्टॉर्म आता है वो तहस नहस करता है। बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों की डेथ जो है 10 to 14 डे के बीच में हो रही है, और वायरस अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। अभी अगर हम वायरस की बात करें या कोविड की बात करें, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं क्लिनिक में कि जहां 6th 7th 8th डे 9th डे तक रिपोर्ट्स परफेक्ट हैं, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है, सडनली 10th डे 11th डे टेस्ट कराया एंड देयर इज राइज इन एवरीथिंग, देन वी हैव टू मैनेज दैट। तो उन चीजों का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ में इन सब के साथ मैं कहूंगा ऑक्सीजन लेवल्स का हमेशा नजर रखें। अगर कुछ इंफ्लेमेटरी मार्कर्स अप एंड डाउन हो भी रहे हैं, पर अगर ऑक्सीजन लेवल बैलेंस है देन यू आर सेफ। इस चीज का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। प्रोकैल्सिटोनिन एक ऐसा टेस्ट है यहाँ पर जो हमारे को बहुत सारी चीजें बताता है। प्रोकैल्सिटोनिन हम इसलिए कराते हैं, कई बार जब आपका NLR बढ़ जाता है, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो बढ़ जाता है, न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए, WBC सडनली राइज हो गए, तो आपको ये बता देगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है कि वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम कंफ्यूज हैं और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि बैक्टीरियल है या लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं चल रहा है काम, या सडनली वायरल हुआ है, आप प्रोकैल्सिटोनिन कराएं। अगर प्रोकैल्सिटोनिन कम आ रहा है तो दैट मीन दैट इज अ वायरल इन्फेक्शन, और अगर प्रोकैल्सिटोनिन जो टेस्ट होता है वो ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स कि नहीं, वायरल इन्फेक्शन ही है और आपको उसका ध्यान रखना है, सॉरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसका हमें ध्यान रखना है। तो वो सेप्टिसीमिया की तरफ पेशेंट जा रहा है। ये बीमारी कई तरह से रूप ले रही है, इस चीज का ध्यान रखें। अब हम आते हैं ट्रोपोनिन पे। ट्रोपोनिन अगर आप कार्डियक सिम्टम्स कुछ भी हैं, पेशेंट ऑलरेडी कार्डियक है, तो वो ध्यान रखे कि ट्रोपोनिन टेस्ट जरूर कराए, क्योंकि उसका हार्ट किस प्रकार से काम कर रहा है, उस पर फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, या कोई कार्डियक अरेस्ट के चांसेस, ये सब हमें उस टेस्ट से गाइडेंस मिल जाती है। रिसेंट टाइम में उसको कार्डियक कोई परेशानी हुई हो तो वो भी हमें जानकारी मिल जाती है। LFT RFT के बारे में आप सभी जानते हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स कंडीशन। RBS इसलिए कराना जरूरी है, कई बार पेशेंट हॉस्पिटलाइज रहता है तो कहीं स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं तो उसकी शुगर बढ़ तो नहीं रही है, या वो घर पे है और डायबिटिक है, तो कोई ऐसी चीज तो नहीं जो कंट्रोल में नहीं हो, इसलिए RBS मार्कर हमारे लिए जरूरी है। ये तो हमने जाना ये सब बेसिक टेस्ट के बारे में। यहाँ पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन के पहले भी, क्योंकि वैक्सीनेशन में बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन में अगर क्या हमें कोई चीज का ध्यान रखना है, कोई कार्डियक पेशेंट हो या किसी को कोई ब्लड की रिलेटेड कोई ऑलरेडी परेशानी चल रही हो, या किसी को भी कोई ऑटो इम्यून डिसीजेस हो, उसको ये जरूर कहें कि अभी आप वैक्सीनेशन लगवाने के पहले एक CBP, CRP और एक D डाइमर, ये 3 टेस्ट जरूर करा लें, जिससे कि आपको ये मालूम पड़ जाए कि ऑलरेडी बॉडी में कहीं क्लॉटिंग तो नहीं है। क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद सडनली ये देखा गया है कि लोग कार्डियक अरेस्ट में गए हैं, क्योंकि उनको ये नॉलेज ही नहीं थी कि उनकी बॉडी में ऑलरेडी कोई क्लॉटिंग चल रही थी या वैक्सीनेशन के बाद हुई है। एंड स्टिल अगर कोई कार्डियक पेशेंट या ऐसा कोई पेशेंट है तो पोस्ट वैक्सीनेशन भी मेरा ये कहना है 15-20 डेज बाद एक बार आप करा के चेक कर सकते हैं। तो ये तो हुई टेस्ट की बात। तो इन टेस्ट से हमें हमारी दवाइयों को सिलेक्ट करने में मदद मिलेगी, पेशेंट की जान को कोई खतरा ना हो उसको समझने में मदद मिलेगी। तो ये गाइडेंस हमें रखनी है, टेस्ट का ध्यान रखना है, लोगों की जेब का भी ध्यान रखना है। तो सब पे, हर व्यक्ति पे ये सब टेस्ट नहीं कराएं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंडीशन समझते हुए टेस्ट कराएं। आज का सेशन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और काफी अच्छा लगा होगा। टेस्ट के बारे में भी आपको सब चीज समझ में आई होगी, कौन कौन से डेज पे कौन से टेस्ट कराने हैं। एक्सरे और CT स्कैन के बारे में एक बार और कहना चाहूंगा कि CT स्कैन अनयूजुअल मतलब बिना कारण के नहीं कराएं, एक्सरेज ही कराएं पहले इनिशियल फेजेस में। 4th डे पे भी आप करा सकते हैं, देन 6th 7th डे पे भी करा सकते हैं। अगर ऑक्सीजन फॉल हो रही है देन गो फॉर CT स्कैन, बिलो 95 जा रही है देन गो फॉर CT स्कैन, अनलेस एंड अनटिल वो 95 के भी नीचे नहीं है तो पहले आप एक्सरे में ही देखें। और अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं 95 फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं तो CT स्कैन में आपको ये गाइडेंस मिल जाएगी किस लंग्स में ज्यादा परेशानी हो रही है, कहीं और कोई और सिस्टम में, चेस्ट के कहीं और कोई परेशानी तो नहीं है साथ में कंप्लीट। तो ये हमारे को HRCT से जानकारी मिल जाती है और उस हिसाब से हम दवाई को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और पूरे टेस्ट के बारे में जानकारी आपको समझ में आई होगी। इनफैक्ट मेडिसिन कैसे सिलेक्ट करनी है आसान तरीके से जैसा हमें सर ने समझाया आपको समझ में आया होगा। Thank you very much. Thank you very much, sir, for giving me the opportunity to speak. Thank you so much all. थैंक यू रोमिल सर, थैंक यू अशोक सर, बहुत अच्छी नॉलेज देने के लिए। आप सभी लेक्चर जो सुन रहे हैं उनमें से किसी को अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं।
हमारे पास अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो जैसा कि है सर ने अभी लेक्चर लिया, ठीक है। अगर आपको कोई फिर भी क्वेरीज होती है, आप हमारे जीमेल एड्रेस पे बिल्कुल डाल सकते हैं। जो भी आपको आंसरिंग होगा जल्द से जल्द आपको उस पर मिल सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने अपना इतना टाइम हमें दिया, और इस पूरे लेक्चर के दौरान पे हमें इतना समझ में आया कि जो भी सर ने हमें नॉलेज दी है वो हमारी प्रैक्टिस लाइफ में या हमें चीज़ों को समझने में, जो अभी पैंडेमिक टाइम पीरियड चल रहा है उस सब चीज़ों में हमारी नॉलेज को हमेशा बढ़ाएगा। और जो भी डॉक्टर्स या स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं उन चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। सर ने बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं वो बहुत डेली रूटीन बेसिस पे, डेली लैंग्वेज पे हम लोग उसको यूज कर रहे हैं और आपको वो चीज़ बहुत आसानी से समझ में आई होगी। हम आगे के लेक्चर में ये भी देखेंगे कि सर ने जो भी मेडिसिन का डिस्कशन हमें बताया है उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, पेशेंट्स में कैसे यूज किया गया है, मेडिसिन के और भी कैसे यूजेस हैं उसको और एक्सप्लेन और डिटेल में समझेंगे। आप अपनी क्वेरीज को जीमेल पे बिल्कुल डाल सकते हैं, हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कि जो अभी पोस्ट कोविड चल रहे हैं या ब्लैक फंगस चल रहा है उसके रिगार्डिंग क्या क्या हम और कोशिशें कर रहे हैं या क्या क्या हम मेडिकेशन अपना अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या हम हेल्प कर सकते हैं, वो हम बिल्कुल इसके नेक्स्ट लेक्चर के लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे। और थैंक यू सो मच जो भी हमें इतना पेशेंसफुली सुन रहे हैं। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ अपने स्टाफ के लिए, अपने टीम मेंबर्स के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो टेक्निकली हम लोगों को मैनेज कर रहे हैं। और मैं बहुत बहुत थैंक यू हूँ, स्पेशली थैंक्स करती हूँ डॉक्टर अशोक जैन सर का, डॉक्टर रोमिल जैन सर का और अपनी टीम का, जिन्होंने हमारे साथ रह करके इस पैंडेमिक के टाइम में हम लोग साथ में रह करके पेशेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, उन्हें समझा है, उन्हें अपना कीमती टाइम दिया है। बहुत सारे लोगों की जान बची है जिससे वो आज भी हमारे लिए अच्छी बात है कि हम साथ मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपके इसी मार्गदर्शन को आगे रखते हुए हम यही आशा करते हैं कि ये जितनी भी नॉलेज है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें बहुत हेल्पफुल होगी और हमारे जो क्लिनिकली नॉलेज है उसको हमेशा बढ़ाती रहेगी। इसी आशा के साथ आज का हम लेक्चर है, आज का जो सेशन है हम उसे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।